हेलो गाइस, वेलकम टू माय वेबसाइट developindiagroup.co.in। और आज हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर जो सीबीएसई बोर्ड में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और ये एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर होगा हमारा। तो ये पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आई एम सूरज सिंह, इंजीनियर सूरज सिंह। आई डिड माई एमटेक फ्रॉम आईआईटी मद्रास। And for more informations you can contact me at 9956624543। तो गाइस, कंटिन्यूटी क्या होती है? आपने 11th में लिमिट पढ़ चुके हैं, तो लिमिट के बेस्ड कंटिन्यूटी होती है। तो सपोज एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन on a subset of real numbers and C be a point on the domain of f, then f is continuous at point C if limit extending to C fx is equal to f of C, means the limit of the function at extending to C will be same as the value of the function at point C. In other word, you can say that if left hand side limit is equal to right hand side limit is equal to the value of the functions, then the functions f is said to be the continuous at point C. If f is continuous at every point of the real number, then f is called continuous everywhere or simply continuous. A real valued functions which is not continuous is called discontinuous functions. So for continuity, we will check the continuity at every point. If the function is continuous at every point, then the function is continuous. If the function is not continuous at least one point, then the function is discontinuous. Now we are going to see the some examples. For example, check the continuity of the functions fx is equal to 2x plus 3 at x is equal to 1. So first of all, we will see that the function is defined at x is equal to 1 or not. So clearly f is defined at x is equal to 1 because f of 1 is equal to 5, which is definite value. So f is defined at x is equal to 1. Now limit extending to 1 fx is equal to limit extending to 1 2x plus 3. अब x is equal to 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारा 5 आ गया, यानी लिमिट ऑफ fx एट एक्सटेंडिंग टू 1 इज इक्वल टू 5 आ गया। और फंक्शंस की वैल्यू भी 5 है, इसलिए लिमिट एट एक्सटेंडिंग टू 1 fx इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 5 आ गया। हेंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। मॉड एक्स बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है, आप जानते हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस भी कहलाता है। मॉड एक्स किस तरीके से डिफाइंड होता है ये आप जानते हैं पहले से। तो मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। नाउ मॉड एक्स इज डिफाइंड एज एक्स when x is greater than or equal to 0, then the value of mod x is x. When x is less than 0, then the value of mod x is minus 1. Now the left hand side limits, so limit extending to 0 minus fx, 0 minus means left hand side limit, this is equal to limit extending to 0, h must be positive, so f of 0 minus h, this is equal to limit extending to 0। अब यहाँ पर देखिए माइनस एच इज लेस देन 0 है, सो ये निगेटिव हो गया, तो एक माइनस यहाँ से आएगा और एक माइनस ऑफ एच ये आ जाएगा, तो माइनस माइनस एच, सो दिस इज इक्वल टू 0। Similarly, right hand side limit is equal to extending to 0 plus fx is equal to limit h tending to 0, h is greater than 0, f of 0 plus h, और 0 plus h ये h is greater than 0 है, सो यहाँ पे x होगा, x is greater than 0 के लिए x होगा, तो लिमिट h tending to 0, h is equal to 0 आ गया। सो लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, हेंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 व्हेन x इज डिफरेंट फ्रॉम 0 एंड 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। तो हमको केवल x इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शंस की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0 बिकॉज एट x इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1। नाउ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू सेम थिंग जो हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में किया, वैसे ही हमको निकालना है यहाँ पर। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h इज ग्रेटर देन 0, f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, h इज ग्रेटर देन 0। और क्योंकि यहाँ पर ये हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं और ये h जो है डिफरेंट फ्रॉम 0 आ रहा है बिकॉज h टेंडिंग टू 0 आ रहा है, तो हम ये वाली वैल्यू लगाएंगे, तो माइनस एच क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। इस तरीके से राइट हैंड साइड लिमिट में भी हम यहाँ पे वही वैल्यू लगाएंगे, h क्यूब प्लस 3 बिकॉज h टेंडिंग टू 0 है, तो 3 आ गई। तो फंक्शंस की वैल्यू 1 आ रही है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट सेम है और ये 3 आ रही है, लेकिन ये फंक्शंस की वैल्यू के बराबर नहीं आ रहा है। देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड हेंस f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0।